Yes, good evening, all of you. Okay, so let us start with the electrostatics. Okay, so we were about to discuss about the Gauss theorem last time, and for Gauss theorem, it is very important to understand the concept of solid angle, which we have talked about last time. So, what is solid angle and how it is defined in steradian? We have seen last time. If suppose there is a solid angle in this way, this solid angle can be considered to be a part of a sphere which is centered at this vertex. Okay, this solid angle will be considered as the part of a sphere whose center lies on the vertex like this. And ये स्पीयर का जो सामने वाला सरफेस एरिया है जिसको हम बोल सकते हैं ए एंड दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय द रेडियस स्क्वायर, रेडियस ऑफ द स्पीयर का स्क्वायर. तो ये एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर ये एक्चुअली बनता है सॉलिड एंगल. ओके, एंड दिस डेफिनेशन इज इन स्टेरिडियन. ठीक है ना, सॉलिड एंगल इज डिफाइंड इन स्टेरिडियन इन दिस वे, राइट? सो यू कैन अंडरस्टैंड. ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सॉलिड एंगल. और इसे भी आगे जाके अगर सपोज हमको पूरे स्पीयर का सॉलिड एंगल अगर निकालना है, फुल स्पीयर, ठीक है, इफ वी जस्ट हैव दिस solid angle to get expanded slowly, then ultimately the full solid angle of the sphere can be obtained by just replacing this area by the area of a sphere, which happens to be 4 pi r square. If you know, you have studied in 10th standard that the area of the sphere is 4 pi r square. So if we just replace it by that 4 pi r square, and that is to be divided by r square as it is. So we can just get this cancelled, r square cancelled, and we will be left with 4 pi steradian. Okay, and this is actually the solid angle of the full sphere. ये दिमाग में रखो बिल्कुल, ठीक है? This remember this correctly, that the solid angle of a full sphere is always going to be equal to 4 pi, and that is going to be in steradian. Okay, now let us discuss about the Gauss theorem. What does it tells us? One more thing is to be understood here, that if suppose this solid angle, if suppose this area is perpendicular to the radius, then it's okay, we can just use the formula for solid angle, that is area upon r square, no doubt. But sometimes what happens is this area is not perpendicular exactly to the radius. Okay, तो इस रेडियस को ये एरिया जो है वो परपेंडिकुलर नहीं होता है. मान लो कि एरिया जो है वो थोड़ा टिल्टेड है लाइक दिस. ओके, ये सपोज ऐसा टिल्टेड एरिया है, ये देखो. तो अगर ये एरिया ऐसा टिल्टेड है तो उस केस में फिर हमको क्या करना पड़ेगा, उसका जो देखो एक एक एरिया है जो परपेंडिकुलर, लेकिन अगर वो एरिया टिल्टेड हो गया तो उसका नॉर्मल जो है, दैट नॉर्मल विल मेक सम एंगल विद द रेडियस वेक्टर थीटा. एंड इन द सेम वे एज वी हैव डन ऑलरेडी इन केस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लास्ट टाइम, वी कैन जस्ट रिजॉल्व दिस एरिया वेक्टर. ठीक है ना, इस एरिया वेक्टर ए बार को हम क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे, जिसमें से एक कंपोनेंट जो ए कॉस थीटा रहेगा. सो दिस कंपोनेंट इज सपोज ए कॉस थीटा, that will be considered in order to multiply this by with the or divide with the r square. तो यहाँ पे a cos theta अपॉन r square, ये एक्चुअली फॉर्मूला बनेगा सॉलिड एंगल के लिए. लेकिन ये कभी यूज करना है जब एरिया एग्जैक्ट परपेंडिकुलर नहीं है, इस रेडियस को परपेंडिकुलर नहीं है. इफ देयर इज सम एंगल थीटा between the radius of the sphere and the area vector, then we can just resolve this area vector in two components and consider the component of a cos theta only and divide it by r square so as to get the exact solid angle. Okay, so this concept is also there. मतलब अगर तुमको ये ठीक से डायग्राम में अगर दिखाना है तो ऐसा दिखा सकते हो, क्योंकि देखो अगर सपोज ये इस टाइप का अगर एरिया है, ये सॉलिड एंगल ऐसा है. अब देखो ये पूरा एंगल लेके, पूरा एरिया लेके तो कोई फायदा ही नहीं है कि नहीं? क्योंकि अगर ठीक से देखो तो रेडियस ऑफ दिस स्फीयर विल जस्ट पास थ्रू दिस पॉइंट P एंड विल बी इन दिस डायरेक्शन. ओके, तो ये जो रेडियल लाइन है, तो ये रेडियल लाइन तो अलग डायरेक्शन में है,
और ये जो एरिया है उस रेडियस को परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है, इट मेक्स सम एंगल। एंड नाउ व्हाट विल वी डू हियर इज विल जस्ट ड्रॉ अ नॉर्मल टू दिस एरिया। इस एरिया का नॉर्मल हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जो उसको परपेंडिकुलर होगा ऑब्वियसली। तो ये हो गया इस एरिया का नॉर्मल। एंड नाउ if we suppose consider the angle between these two as theta, then we can just resolve this area vector into two components। तो इस एरिया वेक्टर को हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे, जिसमें से एक कंपोनेंट जो बनेगा वो रहेगा a cos थीटा, जिसको हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ये देखो, इस a बार को अगर हमने ड्रॉ परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट ड्रॉ किया तो एक कंपोनेंट उसका ऐसा रहेगा। ये देखो, ये ग्रीन कलर से जो दिख रहा है कि नहीं, वो इस तरफ काम कर रहा है, इसको हम बोलेंगे a cos थीटा, ओके। और जो दूसरा कंपोनेंट उसका रहेगा वो रहेगा एक्चुअली a sin थीटा, which will be actually perpendicular to this radius vector. So that's why it will be like this. So we can call it as a sin theta, okay. And now the area corresponding to this a cos theta component will actually be like this। ये देखो ऐसा रहेगा, वो समझ सकते हो ठीक से। ये a cos थीटा वाला जो कंपोनेंट है उसका परपेंडिकुलर ये ऐसा रहेगा, ओके। और a sin थीटा का जो करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट है, it's of no use because it is not subtending any angle, solid angle on the vertex of this here। तो ये जो कंपोनेंट है it's of no use because it is not going to subtend any angle on this vertex, but this green color का जो कंपोनेंट है जो यहाँ पे इनको दिख रहा है, that is only the effective area। we can see that means whenever the area is not perpendicular then effective area can always be found out by a cos theta। इतना ही याद रखो, ठीक है। बाकी कुछ याद रहे ना रहे तो यहाँ पे इतना ही याद रख लो सिर्फ कि अगर एक एरिया जो है वो अगर परपेंडिकुलर है तो ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर एरिया परपेंडिकुलर नहीं है तो उस एरिया का जो नॉर्मल होता है वो नॉर्मल अगर थीटा इतना एंगल करता है तो उस एरिया का इफेक्टिव एरिया कितना हो जाता है, a cos थीटा हो जाता है। और उस केस में हमको जो टोटल ये जो एरिया है सॉलिड एंगल जो है, तो वो सॉलिड एंगल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये a cos थीटा को फिर r स्क्वायर से हमको डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके हमको सॉलिड एंगल मिलेगा, ठीक है। और फुल स्फीयर का सॉलिड एंगल कितना होता है, 4 पाई स्टेरेडियन, वो भी मैंने बताया, ओके। एंड देन व्हाट डज गॉस थ्योरम टेल्स अस इज simply that we have to understand this Gauss theorem from depth because large number of questions are also asked on the Gauss theorem itself। So see what does Gauss theorem tells us is if suppose there is a closed surface of any shape, okay, and containing any number of charges in it, suppose there are number of charges q1 q2 q3 and so on like that here in this surface, then the total flux passing out through this closed surface always happens to be equal to the 1 upon epsilon naught times of the algebraic sum of the all charges enclosed by that surface, okay। And in order to prove that we can just do a simple thing। if suppose we consider a point p here, यहाँ पे एक पॉइंट p कंसिडर कर लो, उसके आसपास एक एलिमेंट कंसिडर करो, और उस एलिमेंट के उस पॉइंट p के साथ अगर हम इस चार्ज को अगर कनेक्ट कर देंगे तो ये डिस्टेंस अगर मान लेते हैं r है, ठीक है। तो इस r डिस्टेंस पे इंटेंसिटी कितना बनेगा इस q1 चार्ज की वजह से, वो हम निकाल सकते हैं। इंटेंसिटी ड्यू टू दिस q1 एट पॉइंट p हियर which is at a distance r will actually be equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into q1 upon r square। Do you agree with this? This is the intensity at this point p here, but due to this this intensity is directed in this direction here, which is along the line joining this q and p, no doubt। But at the same time if we just try to draw the vector normal, so this vector normal here of this area will be directed like this, which is going to be at right angles to this element of area ds, okay। So that's why we can call it as ds bar, okay। And this blue colored line जो है उसको हम बोल देंगे e bar, जो रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, और इनके दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा, राइट। And because of that whatever is the flux passing through this region of area ds will actually be obtained to be simply equal to d phi, okay। d phi मतलब flux passing through this small region of area ds will actually be equal to e into ds into cos theta, which we already proved, okay।
because we already know that the electric flux passing through some area is always given by the dot product of electric intensity vector and area vector, correct? So E bar dot ds bar, which can also be written as E into ds into cos theta, no doubt. And also if you want to find out the total flux, अब देखो ये यहाँ पे इस एलिमेंट में से पास होने वाला फ्लक्स हमको मिल गया, यहाँ पे हम और एक एलिमेंट कंसिडर करेंगे, यहाँ पे और एक एलिमेंट कंसिडर करेंगे, तो इसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से हर इस एलिमेंट में से पास होने वाला जो फ्लक्स है वो हम निकाल के ऐड करेंगे, जिससे हमको टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसमें मिलने वाला है. So the total electric flux phi obtained here is actually going to be the integration of this d phi, and that means it is going to be the integration of this term, which is E into ds into cos theta. But as we already know that this phi is equal to integration of E. E मतलब क्या होता है यहाँ पे, इंटेंसिटी का वैल्यू देखो यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिराइव करके रखा है, वो अगर हम यहाँ पे डाल देंगे इंटेंसिटी की जगह पे, तो वहां पे हमको मिल जाएगा, देखो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 अपॉन आर स्क्वायर, ये बन गया इंटेंसिटी का वैल्यू, इंटू ds is already there and cos theta kept as it is. Okay, now if we just simplify this further, then we can get that 4 pi is a constant, epsilon naught is also constant, q is also constant. ठीक है, क्योंकि जब हम अलग अलग यहाँ पे जाएंगे, अलग अलग एलिमेंट्स पे जाएंगे, तो r तो बदलता रहेगा, है कि नहीं, एंगल थीटा भी बदलता रहेगा, तो cos थीटा इज चेंजिंग एंड वेरिएबल, एंड ds ऑल्सो, मतलब एलिमेंट का जो एरिया है वो भी तो कम ज्यादा होता रहेगा, जिसके चलते हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये ds थीटा एंड r is the variables, these are the variables, and rest of the things are constant which can be taken out. So we can just say that this Q1 upon 4 pi epsilon naught, this is actually going to be a constant, and that's why we have taken it out. And what is left inside the integral sign is simply ds into cos theta upon r square. अभी देखो ये जो हमने अभी देख रहे हैं यहाँ पे ds cos theta upon r square, डू यू रिमेम्बर, अभी हमने बात की कि अगर समझो एक सॉलिड एंगल होता है और सपोज ये पॉइंट है और ये अगर वर्टेक्स है और ये एरिया अगर टिल्टेड है, जो कि इसके साथ थीटा इतना एंगल करता है, ए इतना एरिया है सपोज, तो इसका सॉलिड एंगल कितना बनता है, अभी हमने बात की a cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, दिस इज डेफिनेशन ऑफ सॉलिड एंगल, याद है सभी को. तो अभी यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कि ds इंटू कॉस थीटा इंटू अपॉन r स्क्वायर, ये जो टर्म है दिस इज ऑल्सो जस्ट लाइक अ सॉलिड एंगल only the thing is that this a is replaced by ds. So and ds is nothing but the area of this element. So if we just join the corners of this area with this charge q here, then some solid angle will be subtended at the point q here, which can be denoted by d omega. Okay, इसको हम d omega बोल सकते हैं. Yes, and this d omega will be the solid angle subtended by this area ds on the charge q1, and this d omega can be written to be equal to ds cos theta upon r square, which is already present here. That means we are going to get that ds into cos theta upon r square is nothing but d omega. That is the solid angle subtended by this area on the charge q1. Okay. And now if we just replace it by that, then we get this phi is equal to q1 upon 4 pi epsilon naught into, what is this whole thing, condense into integration of d omega only, where d omega is going to be the solid angle subtended by this area ds on the charge q1, right? Similarly, if this area subtends angle d omega 2, or this angle, this area subtends another some angle like this, so if we calculate the solid angle subtended by all these areas on this on this surface, closed surface, then the sum of all the solid angles will come out to be 4 pi, which is the solid angle of a sphere. Even if this is not a sphere, we have considered the effective area, and when we'll add all these solid angles, then that area will resemble the area of the sphere only, and that's why we can say that the total solid angle subtended by this whole closed surface is going to be the same as the solid angle subtended by the sphere, whole sphere, which is 4 pi. So we can just replace this integration of d omega by 4 pi, so that we can get this phi to be simply equal to q1 upon 4 pi epsilon naught into 4 pi.
so that this 4 pi just gets cancelled and we are left with phi is equal to q1 upon epsilon naught. And in the same way, if we focus on the charge q2 here, then the flux due to this charge q2 can be obtained to be simply equal to q2 by epsilon naught. In the same way, if we focus on the charge q3, then the flux due to this q3 will be found out to be simply equal to q3 upon epsilon naught, and so on like that. So we can just say that the total flux due to all these charges combined together passing out through this closed surface can be obtained to be simply equal to q1 plus q2 plus q3 plus that up to जितने भी charges है वहां पे that divided by epsilon naught, which can also be written to be equal to 1 upon epsilon naught into algebraic sum of all charges, which is already the Gauss theorem. Okay, so this is the simple statement of Gauss theorem, that which tells us simply that the total electric flux passing out through some closed surface is always equal to the algebraic sum of all the charges enclosed by that surface. Enclosed, okay, ये word भी important है. The outside charges, the charges which are present outside the closed surface will not contribute into the overall electric flux passing out through this closed surface. Remember, तो जो बाहर में रखे हुए चार्जेस होते हैं, यहाँ पे अगर एक चार्ज रखा हुआ है सपोज क्यू डैश, ओके, इसके बाहर है वो, तो इसमें से जो फ्लक्स निकलेगा वो यहाँ पे एंटर करेगा, ठीक है, बट एट द सेम टाइम इट विल लीव आल्सो एट दिस पॉइंट, तो यहाँ से वो लीव करेगा. सो द फ्लक्स एंटरिंग कैन बी कंसिडर्ड एज नेगेटिव, but the flux leaving here can be considered as positive, and hence we can say that the entering flux and leaving flux will exactly be the same, and hence we can say that this outside charge doesn't contribute in the overall electric flux on this closed surface. Yes, it contributes locally. यहाँ पे वो contribute करेगा, यहाँ पे भी contribute करेगा, but यहाँ पे उसका contribution कैसा है, negative, और यहाँ पे contribution positive. तो इसलिए जितना फ्लक्स अंदर जा रहा है उतना ही फ्लक्स सीधा बाहर भी निकलते ही जा रहा है, और उसकी वजह से इस चार्ज का जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है वो जीरो बन जाता है, बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव जस्ट कैंसिल ईच अदर, एंड दैट्स व्हाई दिस चार्ज इज सपोज्ड टू कंट्रीब्यूट नथिंग इनटू द ओवरऑल फ्लक्स लिंक्ड विद दिस होल क्लोज सरफेस. रिमेंबर, सो ये एक चीज हमको समझना है, ठीक है. अभी सॉलिड एंगल का जो कंसेप्ट है, तो उसके ऊपर किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो थोड़ा सा हम एक बार देख लेंगे ठीक से. और यूजिंग गॉस थ्योरम हाउ वी कैन जस्ट आंसर सम क्वेश्चंस. ओके, इफ यू आर आस्क्ड अ क्वेश्चन, देयर इज अ क्यूब, ओके, ऑफ साइड लेंथ L, and suppose a charge q is just placed at the center of this cube. okay, देखो ठीक से, ये मान लो एक क्यूब है और उसके सेंटर पे एक चार्ज q इतना हमने रखा हुआ है, ठीक है. कैन यू फाइंड और कैन यू आंसर व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस होल क्यूब? How much will be the total electric flux passing through this cube? ये पूरे क्यूब में से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा इस चार्ज क्यूब की वजह से? Just put it in chat box first. See here, charge is q which is present inside this whole cube, बराबर. और क्यूब का जो हम देखते हैं कि जितना भी चार्ज इसमें से इमर्ज होगा वो पूरा का पूरा इस क्यूब के सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा, करेक्ट है, जिसके चलते हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि द टोटल फ्लक्स पासिंग आउट थ्रू दिस क्यूब विल एक्चुअली बी इक्वल टू q अपॉन इप्सिलॉन नॉट. समझा कैसे? क्योंकि एक ही चार्ज इस क्लोज सरफेस के अंदर है कि नहीं, तो इसलिए एक चार्ज होने की वजह से इसमें से टोटल फ्लक्स जो पास होगा वो q बाई इप्सिलॉन होगा, बिल्कुल, ठीक है. अगर सपोज तुमको पूछा देयर इज अ सिलेंडर एंड सपोज दैट देयर इज अ चार्ज q प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ दिस सिलेंडर, यस, then how much will be the total flux passing through this cylinder?
इस सिलिंड्रिकल सरफेस में से, मतलब पूरे पूरे सिलेंडर के सरफेस में से कितना टोटल फ्लक्स पास हो रहा होगा, कौन बताएगा? यस, अगेन द सेम थिंग। सी, सरफेस चाहे कैसा भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट इज द टोटल फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम दिस चार्ज? इट इज गोइंग टू बी क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट, करेक्ट है? तो इसलिए फिर यहाँ पे फाई जो है वो रहेगा क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट, नो डाउट। If suppose we have a 10 coulomb charge kept at this point, plus 10 coulomb charge is kept at this point, and suppose a minus 2 coulomb charge is kept at this another point here, okay, inside this cylinder, and also there is a charge of 5 coulomb placed here, and also there is a charge of 3 coulomb placed at this point here, okay. Yes. Now just tell me what should be the electric flux passing through this surface of this cylinder here. Just put it on the chat box fast. Yes, very good. 8 upon epsilon naught, correct है, क्योंकि यहाँ पे 10 coulomb and minus 2 coulomb. What is the net charge enclosed by this cylinder? It is going to be 10 minus 2, that is 8, correct है? So that's why the flux passing through this whole closed surface will actually be equal to 8 upon epsilon naught. That's it. Outside charge चाहे कितना भी हो, it will doesn't not contribute into the overall closed surface here, okay. अच्छा, अभी इसमें अगर मैंने पूछा कि सपोज देयर इज अ चार्ज ऑफ 100 कूलम इन द सेंटर, at the center, then how much will be the total flux passing through this closed surface, closed cube? इस क्यूब में से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा? जरूर 100 upon epsilon naught, no doubt. So this is the flux passing through this whole cube, correct है? Yes. Now if you are asked to find out what is the suppose what is the flux passing through each of the surface, this one surface only, ये जो surface दिख रहा है कि नहीं, ये वाला जो मैं शेड कर रहा हूं यहाँ पे, इस surface में से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा? बताओ जल्दी। एक सरफेस में से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा इस चार्ज की वजह से? देखो, अगर पूरा का पूरा फ्लक्स अगर हम निकालते हैं तो वो 100 अपॉन इप्सिलॉन नॉट मिल रहा है, राइट? बट अगर हम इस पूरे फ्लक्स को अगर 6 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि उसमें से कुछ फ्लक्स जो है वो इस वाले एरिया में से पास होगा, कुछ फ्लक्स इस वाले एरिया में से पास होगा बाहर की तरफ, कुछ फ्लक्स इसमें से पास होगा, राइट? कुछ फ्लक्स जो है बाहर आएगा और कुछ फ्लक्स उस वाले एरिया में से पास होगा, करेक्ट है कि नहीं? दिस क्यूब हैज 6 सरफेसेस ओवरऑल, करेक्ट है? इस पूरे क्यूब को 6 सरफेसेस है। तो अभी इसमें से अगर हमने लिखा कि हर सरफेस के अंदर सेम फ्लक्स जाएगा, बिकॉज दिस चार्ज इज प्रेजेंट एट द सेंटर, रिमेंबर हियर the charge is actually present at the center, and that's why whatever flux is emerged or whatever flux is originated from this charge will just get divided in 6 equal parts, and each of these parts will pass through this each of these surfaces here, and that's why we can just get that the flux passing through this one surface will be 100 upon epsilon naught divided by 6, okay? ये तो ओवरऑल फ्लक्स है, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 6 से, क्यों 6 से डिवाइड किया? क्योंकि 6 सरफेसेस है वहां पे, राइट? तो 6 सरफेस होने की वजह से हमने यहाँ पे इसको 6 से डिवाइड किया, जिसकी वजह से हमको यहाँ पे जो एक सरफेस में से पास होने वाला फ्लक्स कितना मिल गया? 100 डिवाइडेड बाय 6 इप्सिलॉन नॉट, रिमेंबर दिस कैन आल्सो रिटन एज 100 अपॉन 6 इप्सिलॉन नॉट, रिमेंबर, ओके? अभी इस एग्जांपल के ऊपर वापस आ जाते हैं, ओके? अगर मान लो कि सेम सिस्टम है, सेम सिचुएशन है, बट सपोज दैट इस ये जो कर्व्ड सरफेस दिख रहा है कि नहीं, कर्व्ड वाला सरफेस, उसमें से पास होने वाला फ्लक्स अगर तुमको दे दिया, ओके? कर्व्ड सरफेस में से पास होने वाला फ्लक्स मान लो 2 कूलम है, यस, ठीक है? 2 इतना फ्लक्स जो है, सॉरी 2 अपॉन इप्सिलॉन नॉट, इतना फ्लक्स अगर कर्व्ड सरफेस में से पास होता है, तो मुझे बताओ
इन सरफेस में से, इस वाले सरफेस में से कितना फ्लक्स पास होगा, निकाल सकते हो? ये वाला जो सरफेस है कि नहीं, इसमें से कितना फ्लक्स पास होगा? कर्व्ड सरफेस में से 2/ε0 इतना फ्लक्स पास हो रहा है, राइट? तो इसकी वजह से इस वाले लेफ्ट राइट वाला जो सरफेस दिख रहा है सर्कुलर वाला, उसमें से कितना फ्लक्स पास होगा? यस, हाउ मच फ्लक्स विल बी पासिंग थ्रू दिस राइट सरफेस, सर्कुलर राइट सर्कुलर सरफेस? वेरी गुड, वेरी गुड Kashish. It will be 3/ε0, just because see टोटल फ्लक्स कितना है 8/ε0, राइट? उसमें से कर्व सरफेस में से कितना चला गया 2/ε0, राइट? बचा कितना 6/ε0, राइट? अब ये 6/ε0 में से ये जो दो कर्व सरफेसेस है उनमें से ही पास होने वाला ना ये फ्लक्स बचा हुआ जो है, अभी उसमें भी ये दोनों सरफेसेस जो है वो सिमेट्रिकल है, और सिमेट्रिकल होने की वजह से जो फ्लक्स है वो दो इक्वल पार्ट्स में बट जाएगा। जो बचा हुआ जो फ्लक्स है वो दो पार्ट्स में बटेगा, जिसमें से एक पार्ट बनेगा उसका आधा, जो कि 3/ε0। So that's why we can say that 2/ε0 is passing through this curved surface. So 3/ε0 will be passing through this left surface and right surface, and this 3/ε0 once again will be passing through this left surface also. देखो 3/ε0, 2/ε0, 3/ε0, add it together, it becomes 8/ε0. Getting this? So in this way we have to be familiar with the concept of this electric flux here. One more question I would like to ask. See, if suppose there is a plane surface whose height is 20 centimeter and breadth is also 20 centimeter, okay? And suppose this is the center of this square plane, and suppose at the distance of 10 centimeter from its, यहाँ से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे सपोज ये एक चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है जो 30 कूलम का है, ठीक है? 30 कूलम इतना चार्ज यहाँ पे 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है। नाउ द क्वेश्चन हियर इज दैट इसमें से जो फ्लक्स ओरिजिनेट होगा, देखो वो हम इसको दिखाएंगे यहाँ पे। सपोज वट एवर फ्लक्स विल बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस चार्ज विल जस्ट पास थ्रू दिस सरफेस लाइक दिस। इसमें से जो लाइंस ऑफ फोर्स मिलेंगे वो इस प्लेन वाले सरफेस में से पास होंगे, राइट? सो द क्वेश्चन हियर इज दैट हाउ मच फ्लक्स विल बी पासिंग थ्रू दिस स्क्वायर सरफेस ड्यू टू दिस चार्ज 30 कूलम। अभी बताओ आंसर जल्दी। क्वेश्चन समझा सबको ठीक से? शुड आई रिपीट द डायग्राम? सी डायग्राम इज लाइक दिस। सपोज दिस इज द स्क्वायर प्लेट whose each of the sides is 20 centimeter, okay? And this is the center of the square, and center के बिल्कुल सामने 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है जो 30 कूलम का चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है? चार्ज इज गोइंग टू बी 30 कूलम, right? And it is placed at this point here, positive, obviously positive charge of 30 coulomb is placed at this point here. So the question here is that how much flux will be passing through this square surface here? Okay, listen here, what we have to do here is we have to make a construction. अब यहाँ पे इसमें हमको सोचना है कि यहाँ पे कोई क्यूब तो है नहीं, right? So what will we do is we will just complete the cube. Can we see? अगर हम यहाँ पे एक क्यूब कंप्लीट कर देते हैं ऐसा, ये ऐसा एक क्यूब हमने कंप्लीट कर दिया। अभी जबकि ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, सो वी कैन बी श्योर दैट
ओके, ये डिस्टेंस अगर 10 सेंटीमीटर है, चार्ज जहां पे खड़ा है तो उसका डिस्टेंस अगर यहाँ से 10 सेंटीमीटर है, और इस क्यूब का जो या इस प्लेन स्क्वायर शीट का जो साइड है वो अगर 20 सेंटीमीटर है, तो ये भी हमको 20 सेंटीमीटर ड्रॉ करना पड़ेगा, ये भी 20 सेंटीमीटर होगा। तो ये जो डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है वो इस 20 का आधा होगा कि नहीं, जिसका मतलब ये होगा कि ये चार्ज जो है वो ऑटोमेटिकली इस पूरे क्यूब के सेंटर पे आ जाएगा। तो ये तो वही सिचुएशन हो गया फिर से जो हमने अभी भी डिस्कस किया था, क्योंकि देखो अगर ऐसा है तो उस केस में इस पूरे क्यूब में से पास होने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा मुझे बताओ। वंस अगेन, इफ सपोज द चार्ज इज 30 कूलम and suppose the total flux originated from the charge is going to be 30 by epsilon naught, correct है? So we can say that the total flux will be 30 upon epsilon naught. इतना तो समझ सकते हो, no doubt. But this flux will just get divided in 6 equal parts because there are 6 surfaces to this cube here, and hence we can just consider that the 1/6 part of that flux will be passing through this square surface, okay, which is to be found out. So the flux through the square surface, तो जो स्क्वायर सरफेस है उसमें से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो इट विल बी 1/6 ऑफ दिस टोटल फ्लक्स, दैट इज 30 by epsilon naught. And if we just multiply this 30 by epsilon naught by 1/6, then it comes out to be actually equal to 5 by epsilon naught. That's it. देखो कितना सिंपल है कि नहीं? Okay. Yes, let us consider another question. Suppose we have a cube okay, and suppose there is a charge which is kept at one of the corners of this cube. इस कॉर्नर पे यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, suppose this charge is going to be 24 coulomb, okay, 24 coulomb. Then here the question here is that how much will be the flux passing through the surface of this cube. अब देखो जबकि यहाँ पे कॉर्नर पे हमने ये चार्ज रखा है, तो इसका मतलब ये सरफेस जो है जो मैं यहाँ पे अभी शेड कर रहा हूँ, ये देखो इस सरफेस में से तो कोई फ्लक्स पास होने वाला नहीं है, इस वाले सरफेस के में से भी कोई फ्लक्स पास नहीं होने वाला है, और तीसरा ये जो सामने वाला सरफेस है कि नहीं, सामने वाला फ्रंट, ठीक है, उसमें से भी कोई फ्लक्स पास नहीं होने वाला है, क्योंकि चार्ज इज जस्ट केप्ट एट द कॉर्नर्स एंड द लाइंस ऑफ फोर्स विल जस्ट बी टेंजेंशियल टू ऑल दीज थ्री सरफेसेस, ठीक है, टॉप, left and front. So that's why no flux will be passing through those three surfaces, but the flux will be passing only through the remaining surfaces which are shaded here by the green color here. ये देखो इसमें से फ्लक्स पास होगा, ये जो ग्रीन से शेड किया हुआ सरफेस है उसमें से फ्लक्स पास होगा, और ये जो पीछे वाला सरफेस है देख रहे हो, ये देखो ये पीछे वाला सरफेस, उसमें से भी फ्लक्स पास हो रहा होगा जरूर, और तीसरा ये जो बॉटम है इस बॉटम में से भी फ्लक्स पास हो रहा होगा बिल्कुल, ओके. सो फ्लक्स विल बी पासिंग ओनली थ्रू दिस थ्री सरफेसेस, बट द क्वेश्चन हियर इज दैट हाउ मच फ्लक्स विल बी पासिंग थ्रू दिस होल क्यूब. दैट मींस इन शॉर्ट हाउ मच फ्लक्स विल बी पासिंग थ्रू दिस थ्री सरफेसेस व्हिच आर देयर. Okay, see here we have to think about this charge here. If we just extend this cube like this, अगर इसके इस तरफ भी अगर हमने क्यूब एक्सटेंड किया तो देख सकते हो ठीक से, ये लाइन इस तरफ खींचा, ये लाइन इस तरफ खींचा, और ये लाइन इस तरफ खींचा, तो क्या होगा देखो ठीक से कि
इमेजिन करो इसको ठीक से, अगर ये 24 कूलम का चार्ज है तो इस तरफ भी एक ऐसा क्यूब होगा, वापिस उस तरफ भी ऐसा क्यूब होगा। तो इसका मतलब क्या है ना कि ये जो चार्ज है, दिस चार्ज विल एक्चुअली बी द कॉर्नर ऑफ 8 क्यूब्स। इमेजिन 8 क्यूब्स का वो कॉर्नर होगा, क्योंकि देखो एक तो ऐसा है कि मान लो कि ये ऐसा है, ये एक सरफेस, ये दूसरा सरफेस, और एक तीसरा सरफेस ऐसा हमने डाल दिया। तो उस केस में क्या होगा कि ये जो कॉर्नर है वो 8 क्यूब्स के साथ कांटेक्ट में रहेगा, तो उसका जो फ्लक्स है वो 8 इक्वल पार्ट्स में बट जाएगा। हर एक कॉर्नर को, हर एक क्यूब को वो उसका 8th पार्ट देता रहेगा, 8 पार्ट उस हर एक कॉर्नर के साथ बिलोंग करेगा। जैसे अगर मान लो कि एक क्लासरूम है, ये पूरा क्लासरूम है, तो इस क्लासरूम का जो एक कॉर्नर है, तो इस कॉर्नर के साथ कितने क्लासेस, मतलब कितने हॉल्स जुड़े हुए हो सकते हैं? तो एक ये है, एक इस तरफ, एक उस तरफ, और एक इस तरफ, 4 तो ऊपर हो गए, और 4 ग्राउंड फ्लोर के भी 4 हम एक इमेजिन कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम इस तरह से अगर कंसिडर करते हैं, एक वर्टिकल लाइन है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, और उसको एक ऐसा अगर लाइन हम डाल देते हैं, ऐसा वाला, ठीक है, जो कि इसको दोनों को परपेंडिकुलर रहने वाला है, पूरे प्लेन को ही परपेंडिकुलर है ऐसे, ठीक है। तो ये सपोज तीसरा लाइन ऐसा ड्रॉ किया, तो ये 3 लाइंस जो है तो वो मिलके पूरे स्पेस को क्या करते हैं, 8 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं। ये तो सबको पता होगा, क्योंकि देखो एक एक क्वाड्रेंट होता है, चलो ठीक है, ऐसा ऐसा इमेजिन करो, ये 2 ही लाइंस है, तो 2 लाइंस पूरे प्लेन को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं, नो डाउट। बट इफ वी ड्रॉ अ थर्ड लाइन हियर लाइक दिस, ये ऐसा वर्टिकल ऐसा लाइन अगर हमने ड्रॉ किया, तो क्या होगा कि ये एक स्पेस तैयार होगा, ये एक क्यूब तैयार होगा, बराबर, ये दूसरा क्यूब, ये तीसरा क्यूब, और ये चौथा क्यूब। ओके, ये 4 क्यूब तो इधर ही बन गए। अभी अगर उसको हमने उल्टा किया और उस तरफ अगर देखा, अगर ये बोर्ड ट्रांसपेरेंट होता तो इसको मैं अंदर घुसा सकता था उस तरफ, तो सेम वैसा ही 4 क्यूब्स इस तरफ पीछे भी हमको मिलने थे, इनके पीछे, तो इसलिए 4 और 4 ऐसे 8 क्यूब्स टोटल हमको मिलते हैं। और उसकी वजह से ये जो चार्ज है ये 8 क्यूब्स के साथ कांटेक्ट में होगा, जिसके चलते हम देख सकेंगे यहाँ पे कि इसका सिर्फ 1/8 कंट्रीब्यूशन जो है वो इस क्यूब के साथ बिलोंग करेगा। इसलिए द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस और ओरिजिनेटिंग थ्रू दिस चार्ज इज एक्चुअली गोइंग टू बी 24 by epsilon naught, no doubt. But the flux required, that is the flux linked with the required flux जो कि हमको यहाँ पे चाहिए, इस क्यूब के साथ लिंक्ड फ्लक्स कितना होगा, 1/8 of this phi, where phi is actually going to be 24 by epsilon naught, and that's why we can get it as 3 upon epsilon naught simply. So that flux will just get divided into 8 equal parts, and each of which will just correspond to each of these cubes here, and that's why we can consider that this whole thing will be the flux passing through that cube will be 3 upon epsilon naught only in this way. और एक सिंपल सा कंसिडर करो, मान लो कि एक ये क्यूब है, ओके, ये क्यूब है, और सॉरी यस, एंड सपोज द चार्ज इज केप्ट एट दिस सरफेस हियर, यहाँ पे इस सरफेस पे अगर चार्ज रखा हुआ है, इस सरफेस पे, ठीक है, लेफ्ट वाले सरफेस पे, और वो भी चार्ज कितना है, सपोज 12 कूलम का चार्ज है। So can you find out how much flux will be linked with this whole cube due to this charge? Just put it in chat box fast. How much flux will be passing through this whole cube due to the charge of 12 coulomb which is kept at the center of a surface of this cube? So here, see here, what we have to do is we have to draw another cube which is going to be at the right of this one here. ऐसा एक क्यूब इमेजिन करो जो कि इसके राइट साइड में रहेगा। अभी देखो ये चार्ज जो है वो इस पूरे क्लोज सरफेस के सेंटर में है कि नहीं, ठीक है,
सो अगर ये पूरे सेंटर में है, हाँ यस वेरी गुड, 6/epsilon naught. See here, since this whole charge is present at the center of this whole closed surface, what we can say is the total flux originated by this charge will actually be equal to 12/epsilon naught. Okay, total, हाँ total मैंने निकाला, लेकिन हमको क्या चाहिए, we want to find out the flux linked with this left side cube only. तो अभी इस लेफ्ट साइड वाले क्यूब में से जो फ्लक्स पास होगा वो कितना होगा, आधा होगा उसका, और कितना होगा, क्योंकि ये टोटल फ्लक्स जो है वो दो इक्वल पार्ट्स में बट जाएगा, आधा इस तरफ जाएगा आधा इस तरफ जाएगा, तो इसलिए फिर जो रिक्वायर्ड फ्लक्स है तो वो कितना रहेगा एक्चुअली, इस 12/epsilon naught का आधा. ओके, दैट इज हाफ ऑफ 5, where 5 is actually going to be 12/epsilon naught and hence you can get it as 6/epsilon naught, no doubt. अच्छा, और एक क्वेश्चन, चलो देखो, सपोज एक क्यूब है, फिर से एक बार, ओके, और एक चार्ज हमने रखा हुआ है जो कि अभी इस क्यूब के किसी कॉर्नर पे हमने रखा है, ये कॉर्नर पे रखा है, सपोज यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, और वो चार्ज भी कितना है, मान लो इट इज गोइंग टू बी 52 कूलम. ओके, 52 कूलम, इतना चार्ज यहाँ पे इस कॉर्नर पे, इस एज पे रखा है, एज पे. अभी मुझे बताओ, how much flux will be passing due to this charge in through this whole cube. इस क्यूब में से इस चार्ज की वजह से कितना फ्लक्स पास होगा, just try to complete the shape. How can you complete it? तो उसके लिए हमको 4 ऐसे क्यूब्स लगाने पड़ेंगे, समझा क्या ठीक से, 4 क्यूब्स. ये जैसे हम ये एक क्यूब हम देख रहे हैं, वैसे 4 क्यूब्स हम लगा सकते हैं, क्योंकि ये एज जो है, दिस एज विल बी इन कॉन्टैक्ट विद द 4 अदर क्यूब्स इन द सेम वे हियर, लाइक दिस. ठीक है, तो ऐसे अगर 4 क्यूब्स हम ड्रॉ करेंगे तो इसमें से जितना भी फ्लक्स आउट होगा, ओरिजिनेट होगा, वो 4 पार्ट्स में बट जाएगा, 4. ओके, 4 इक्वल पार्ट्स में बटेगा, जिसमें से अभी टोटल फ्लक्स कितना होगा इसमें से ओरिजिनेट होने वाला, the total flux will be actually 52/epsilon naught, which we can call it as a 5. Okay, but this total flux will just get divided into 4 equal parts. ठीक है, एक ये वाला, एक इस तरफ का, एक सामने का, और एक इसके सामने का, बराबर, ये ऐसे 4 पार्ट्स में वो बढ़ जाएगा, और इसलिए the required flux which we want to find out will actually be the 1/4 of the total flux passing through this or originating through this charge, which is actually going to be 1/4 of 52/epsilon naught, which is actually going to be 13/epsilon naught. Okay, so it will be 13/epsilon naught. This is going to be actually the total flux passing out through this closed cube in this way. तो ये इस चीज का, इस टर्म के जो क्वेश्चंस है तो वो उसमें हमको करने होते हैं. yes, okay, so that's all about the Gauss theorem and the questions related to that. Okay, now in the next lecture we will talk something about the dipole. Okay, dipole and the dipole moment and the electric field due to the dipole moment and the torque acting on that dipole when it is placed in magnetic electric field and so on like that. तो डाइपोल के साथ रिलेटेड जो भी सब कंसेप्ट्स है तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ठीक है, और सुनो सभी